Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss about the good bacteria. Question and answer, chapter number 6.2, Communicative English for class 8. When we think about bacteria, we have difficult, we have something fearness, and we think that the bacteria are harmful for us, but all bacteria are not harmful for us. How they are benefited for us, and how they are helpful for us. So in this chapter we will look at through the question answer. So even I couldn't made the video lecture for this lesson, or I couldn't explain due to lack of time, but further I will make the video also. Then let's begin to think about this question answer. So there are almost 12 questions and answers. So according my knowledge, by helping of your textbook and or by sentence building, I try to satisfy you. If you have any problem or any queries about this chapter, you can comment that I will be glad to help you. So, question number one: what kind of land, air, and water did man get from nature? ओके, सो इंसान को प्रकृति के द्वारा किस प्रकार का जमीन, हवा और पानी दिया गया है? नेचर gave man land that was covered with green forests, air that are pure and refreshing, and water sources that were clean and sprinkling. तो इंसान को प्रकृति के द्वारा जो ज़मीन दिया गया है, जो कि मतलब पूरे ग्रीन फॉरेस्ट के द्वारा कवर अप है, जो एयर है वो बिल्कुल प्योर है, रिफ्रेशिंग है, और जो वाटर है वो बिल्कुल क्लीन यानी साफ़ सुथरा है. What has man done with land, air and water gifted to him by nature? So इंसान इन सभी के साथ क्या व्यवहार करता है? The man has polluted the land with garbage and industrial waste. इंसान जो है गार्बेज के द्वारा और इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा इस लैंड को पोल्यूटेड करता है. एंड हैज़ पोल्यूटेड द एयर विथ टॉक्सिक फ्यूम्स. टॉक्सिक फ्यूम के द्वारा वो एयर को पोल्यूटेड करता है. देन ऑल्सो ही मेड द रिवर एंड ओशन जस्ट लाइक ए डस्टबिन. तो रिवर को और ओशन को वो एक डस्टबिन की तरह वो इस्तेमाल करता है. What happens if we drop too much sewage into river and seas? अगर हम बहुतायत मात्रा में सीवेज को और अगर हम इस प्रकार रिवर में डालें, है ना, तो क्या होगा, आगे का स्थिति क्या रहेगा? If we dropped too much sewage into our river and seas, the marine life will be disturbed. तो यदि हम इस प्रकार सीवेज को ड्रॉपिंग करते रहेंगे तो हमारा जो मैरीन लाइफ है ये डिस्टर्ब्ड होगा. साथ ही साथ द वेस्ट कैन नो लॉन्गर डेल्यूट. जो वेस्ट है वो लंबा समय तक ऐसा मोटा स्तर पर रहेगा, वो उसमें पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा. ऑल द ऑक्सीजन इन द वाटर इज यूज्ड ऑफ एंड द फिश बिगिन टू डाई. तो जितने भी ऑक्सीजन है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और जो फिशेस है वो मरना शुरू कर देंगे. What are people and government becoming increasingly are concerned about? इस समय लोग और सरकार किस प्रकार से इसके प्रति एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं? Fortunately, people are now becoming increasingly aware of the danger
ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के प्रति लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो चुका है। इन मैनी places, industries are being directed by the government to stop poisoning the environment। ऐसा बहुत सारी जगहों में इंडस्ट्रीज को मतलब सख्त रूप से मना कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि वो क्या करें कि वो क्या ना करें कि इंडस्ट्री से जो पॉइजनस गैस निकलता है उसको ना छोड़े, यानी उसको बंद कर दे। What is the common belief about bacteria? Are all bacteria harmful? बैक्टीरिया के बारे में साधारण विचार क्या होता है, विश्वास क्या होता है? क्या सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होता है? It is common belief about bacteria that they are harmful and dangerous. But all bacteria are not harmful. A few species of bacteria are harmful and dangerous। सबके अंदर ये विश्वास है कि बैक्टीरिया जो है वो तो क्या है, डेंजरफुल है, हार्मफुल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ प्रजाति के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। हाउ डू बैक्टीरियाज एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बैक्टीरिया हमारा सॉइल को कैसे फर्टिलिटी बनाता है। बैक्टीरिया हेल्प degrade dead animals and plants, thus they bring uh, valuable nutrients back to the earth। ये valuable printed है लेकिन valuable होना चाहिए, valuable होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको valuable करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है जितने भी मरे हुए एनिमल्स से प्लांट है उन सभी को डिग्रेड कर देता है और इस तरह से और सॉइल में एक वैल्यूएबल न्यूट्रिशन को लेकर के आता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। व्हाट डू मीन बाय बायोरेमेडिएशन। तो बायोरेमेडिएशन से आप क्या समझते हैं। Some species of bacteria help clean off harmful pollutants out of the environment. This process is called bioremediation। तो यहाँ पे बायोरेमेडिएशन से हम ये समझते हैं कि जो कुछ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं उसको क्लीन करते हैं। उसके प्रोसेस को ही रेमेडिएशन कहा जाता है। हाउ डू टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज हार्म द एनवायरनमेंट। जो फैक्ट्रीज से टॉक्सिक निकलते हैं वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। द टॉक्सिक सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय फैक्ट्रीज एंटर सॉइल, air and water and polluted them that don't break down easily by natural process। ये जो टॉक्सिक जो डिस्चार्ज होते हैं फैक्ट्री से ये सीधा सॉइल में, एयर में एंड वाटर में एंटर कर लेते हैं और एंटर करने के बाद वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बहुत जल्दी ब्रेक भी नहीं होते हैं, यानी जैसा का वैसा बने हुए रहते हैं। How does the liquid waste from textile factories harm the marine life? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिक्विड वेस्ट जो है जो टेक्सटाइल के फैक्ट्री से निकलता है वो कैसे मैरीन लाइफ को हार्म करता है। The liquid waste from the factories that act like a pair of sunglasses। As a result, all the plants and animals in the affected river don't get the normal amount of sunlight and die very soon। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड वेस्ट है फैक्ट्री से आता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री से आता है, जो एक पेयर ऑफ सनग्लासेस की तरह काम करता है और जिसके चलते क्या होता है कि
और सनलाइट जो है पूर्ण मात्रा से उस अफेक्टेड रिवर में, है ना, वाटर बॉडी में क्या नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता है। और जिसके चलते वहाँ पर जितने भी मतलब मैरीन क्रिएचर्स होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं, वो सभी बहुत जल्दी मर जाते हैं। आप जानते हैं कि सन का जो रेस है ना, वो क्या होता है कि वो सबके लिए मतलब एनर्जी का कारण बनता है। अगर सन का रेस हमें नहीं मिलेगा तो हमें पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगा, और जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य में हानिकारक होगा। What have scientists found at the outflow pipe of some textile factories? जो आउटफ्लो पाइप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में है, उन्हीं से साइंटिस्ट को क्या सीख मिला, उन्होंने क्या प्राप्त किया। साइंटिस्ट हैव गॉन बैक टू नेचर इन देयर सर्च फॉर ए सॉल्यूशन। साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करते हैं प्रकृति के द्वारा। दे सीम टू हैव फाउंड द सॉल्यूशन इन हेल्पफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कुछ लाभदायक बातों को उन्होंने प्राप्त किया। वो क्या चीज़ है? टेस्ट हैव गॉन दैट a bacterium which is found around the outflow pipe at some factories its die। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है डाइस को खा रही है, ये परीक्षण के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। यानी जिस बैक्टीरिया जिस डाइस जो है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसको ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। How can the good bacteria be protected from being washed away by the flow of water in rivers? तो नदियों में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहने से कैसे उसको बचाया जा सकता है? बहुत सीधा सा आइडिया है। द गुड बैक्टीरिया टू बी पुट ऑन द बॉल्स। अच्छे बैक्टीरिया को बॉल के ऊपर रखा जा सकता है ताकि टू प्रोटेक्ट देम अवे फ्लो ऑफ द रिवर, ताकि वो रिवर के फ्लो से बचाया जा सके। यानी रिवर के फ्लो में से वो मतलब उस बॉल के ऊपर होकर के वो बने रहे। व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट वे टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज? तो पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए कौन सा अच्छा वे है? बहुत सरल सा आंसर है ये। द बेस्ट वे टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज़ दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट द पॉल्यूशन। अगर हमको फाइट करना है तो हमें पॉल्यूशंस के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। एंड वी शुड हैव रिड्यूस्ड, हमें रिड्यूस कर देना चाहिए द पॉल्यूशन एक्टिविटी। पॉल्यूशन के तहत जो कार्य सब हम करते हैं वो सभी को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। तो दोस्तों और बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार कोई मेरे चैनल को विजिट किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की भी दबाएं। साथ साथ अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।